امریکہ میں دہائیوں سے بسے لوگ اس کے ماحول کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن کیا ماحول کے بدلنے سے مزاج بھی بدل جاتا ہے؟ یہ لوگ آج بھی اپنا دیس، اپنے لوگ، اپنی گلیاں، اپنے روایات، اس سب کو شدت سے یاد کرتے ہیں اور اس کو امریکہ میں ہی اپنانے کی کوشش بھی جاری رکھے ہیں۔ ہم اس وقت ایک دیسی شادی میں موجود ہیں جو امریکہ میں ہو رہی ہے، اور یہاں پر ہم یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کیا خواہشات رکھتے ہیں، کہاں پر وہ جانا چاہتے ہیں اور وہ کیا وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کچھ بتائیے گا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کہاں پر کیا شادی کہاں پر کروانا چاہیں گی، کیا کرنا چاہیں گی؟ کیا آپ کی پریفرنس ہوگی کہ ایک دیسی کمیونٹی چاہے پاکستان سے یہاں پر یا یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، یا یہ کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیں؟ آئی پرسنلی بلیو کہ جو میری جنریشن تھی وہ پاکستان میں اگر ہوتی تو میں پاکستان سے شادی کر کے لے کے آ جاتی، مگر اب جو میرے بچے ہیں وہ ماشاءاللہ یہیں کے بورن ہیں، سو کیونکہ یہیں کے بورن ہیں اور یہیں کے ریزڈ ہوئے ہیں، سو میرے لیے جو میں سوچتی ہوں میرے بچوں کے لیے بیٹر ہے وہ یہیں کے ہی ہو۔ آپ بتائیے کہ آپ کی پریفرنس کیا ہوگی، جو کہ آپ کے بچے ابھی میل فیمیل دونوں بہت چھوٹے ہیں، لیکن کہیں کہیں ایک تضاد آ جاتا ہے کہ میل کے لیے آپ کچھ اور سوچتے ہیں اور فیمیل کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں۔ بالکل، آپ کیا سوچیں گی؟ میری بیٹی کا تو ڈیفینیٹلی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، شی پک اپ ایز لانگ ایز شی نوز دا ویلیوز، اسے پتہ ہے یہ لمٹ ہے، اس سے آگے نہیں میں نے جانا، تو ایز اے ہیز ٹو بی اے مسلم۔ وہ کیا لمٹ ہے ویسے یہ بتائیں؟ ہیز ٹو بی اے مسلم، اوکے، بٹ آپ اہل کتاب میں بھی جا سکتے ہیں، اسے پتہ ہے یہ ہمارے میں بھی ہے، ہم اسے نہیں ڈس ایگری نہیں کرتے، رائٹ؟ تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، شی نوز، شی از یو نو، اسے ہم ایجوکیٹ کیوں کرتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہم ایجوکیٹ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ دے کین تھنک بیٹر فار دیئر لائفس۔ اگر ہم نے اپنی ہی چیزیں ان کو دینی ہیں تو we're not really raising them, we're just telling them how we have to tell, you know, we're giving them this is how we want you to be, but I think they are open minded, they know exactly what's۔ ہم یہ تو پوچھ رہے ہیں کہ پیرنٹس کیا چاہتے ہیں بچوں سے، لیکن ہم بچوں سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ What would you like to do when well, you are grown up already. I'm already grown up. But then would you listen to your mom? Of course, no. I am very big on keeping the culture alive. I need a Desi wife and someone who's Urdu speaking, because my Urdu بہت اچھا نہیں ہے، مگر بول سکتا ہوں، مگر تھوڑا تھوڑا بھی اچھا نہیں بول سکتا۔ ہاں، so I need a Urdu speaking wife and Desi definitely to continue the culture. But Very big on that. would you let your mother to decide کہ she chooses someone for you from Pakistan and then bring her here and then… You see that? Probably not. It depends, but I'd like to look at for my own, and then if that doesn't work out, then I'd probably go with her choice. You are going to let your mother choose? I believe at first chance, first opportunity, she should at least get a say in the decision. And maybe if that does not work out, then I could go find my own, partner. Okay, so when you say that you're going to find your own person, who would you prefer? Someone from Pakistan, someone from the Pakistan community over here, someone Spanish, Mexican, English, British, whatever, I don't know. Someone from anywhere. Someone that makes me feel. Someone that makes me feel alive, right? Someone that makes me happy. جب یہاں پر اس قسم کے گیدرنگز ہوتی ہیں، چاہے وہ عید سے برات کی ہو یا جو ڈاکٹرز کی تنظیم ہے یا اور جو کمیونٹیز کی تنظیمیں ہیں، وہ جب اکٹھی ہوتی ہیں تو اس کے اندر فیملیز ایک دوسرے کو جانتے پہچانتی ہیں، تو پریفرنس کیا ہوتی ہے؟ شادی بچوں کی اپنی کمیونٹی میں کی جائے، پاکستان میں کی جائے، پاکستان سے لا کے کروائی جائے؟ پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ جہاں بچے خوش ہوں وہاں کی جائے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے بہت فیملیز ہیں 25-30 سال سے ایک دوسرے کو جانتی ہیں، پاکستان سے زیادہ بڑھ کے جانتی ہیں، تو وہ لوگ آپس میں اگر یہاں کر لیں کوئی بات نہیں، اگر کوئی بچی کو کوئی لڑکا وہاں سے آیا ہوا پسند ہے اور دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہاں کر لیں، جہاں بچے خوش ہوں وہاں کرنی چاہیے۔ لیکن ماحول کی تبدیلی سے مزاج کی تبدیلی بھی آتی ہے، جس میں آپ بات کر رہی ہیں کہ جی بچوں کی خوشی بھی دیکھی جاتی ہے، پر یہاں پہ گرو اپ والا بچہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے؟ رکھتا ہے، میری بیٹی رکھتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ریس کر رہے ہیں نا، تو آپ انہیں بیسٹ آف بوتھ ورلڈ دے رہے ہیں، یہاں کی ایجوکیشن دے رہے ہیں، یہاں کی فریڈم دے رہے ہیں، یہاں کی لبرٹی دے رہے ہیں، لیکن آپ اپنا کلچر بھی تو دے رہے ہیں، گھر میں اردو بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں،
जो जैसे आप रेज हुए थे 100% तो आप ऐसा रेज नहीं कर सकते, लेकिन आप ही तो रेज कर रहे हैं ना. हमने हमेशा कोशिश की हमारे घर में हम उर्दू बोलें, इंग्लिश तो बच्चे सीख ही लेंगे, घर का खाना खाएं, उनको अब ऐसी आदत है कि वो उसी राह पे चल रहे हैं, तो आपकी तरबियत भी तो कुछ होती है. यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ वगैरह हैं, आपको क्या लगता है कि वो शादी बच्चों की पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं, पाकिस्तानी से करवाना चाहते हैं, या यहीं पर ही उनका ट्रेंड क्या है, क्या सोचते क्या हैं? मोस्ट मेजॉरिटी तो चाहते हैं कि यहीं के पाकिस्तानी अगर उनको मिल जाए तो डेफिनेटली वो प्रेफर करते हैं अपने कल्चर से रिलेटेड, अपना मज़हब. लेकिन क्योंकि अब इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी हो चुकी है दैट दे आर ओपन टू मुस्लिम्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़ एज वेल. इजिप्शियन है, सूडानी है, पाकिस्तान बैक होम दे डू गो बट नॉट मेजॉरिटी फॉर श्योर. अच्छा, क्या वजह है उसकी? अब ये जो ट्रेंड आप कह रहे हैं कि चेंज हो रहा है, जी, उसकी एक वजह तो ये है कि वो मेंटालिटी उनको लगता है डिफरेंट है. यहाँ के बच्चे जो बॉर्न एंड रेज होते हैं वो अमेरिकनाइज होते हैं, उनका इतना माइंड मैच नहीं होता पाकिस्तानी बच्चों से. तो आई थिंक ये भी रीज़न. और दूसरा आई थिंक वीज़ा इश्यूज़ ने बहुत जो 4-4 साल लग रहे हैं, 5-5 साल स्टेइंग अवे फ्रॉम द स्पाउस, दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस एज वेल. मैं यहाँ पे लोगों से पूछ रहा था कि लोग यहाँ पर क्या प्रेफर करते हैं, अपनी कम्युनिटी में करना पसंद करते हैं, या उनको लगता है कि अब डाइवर्सिफाइड हो चुका सब कुछ, अब बात आगे बढ़नी चाहिए? I'm not at that stage yet, so I don't know. मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो जिनके बच्चे इस एज में हैं, दे ऑफ कोर्स दे प्रेफर कि अपनी कम्युनिटी का कोई हो, और मुसलमान हो और पाकिस्तानी हो. प्रेफरेंस तो यही होती है. आपने कहा आप साइकाइट्रिस्ट हैं, राइट? आप बताइएगा अपने तजर्बे से कि इसकी क्या वजह है, ये क्यों प्रेफर करते हैं? क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज सिमिलैरिटीज़ हैं, अडेप्ट करना आसान होएगा. आपका अगर कल्चर एक है, आपकी वैल्यूज़ एक जैसी हैं फैमिली की, सो इट्स ईजी टू एडजस्ट. लेकिन यहाँ पर जो पलते बढ़ते हैं बच्चे, उनको उनका उस तरह एक्सपोजर नहीं होता पाकिस्तान से, तो उसमें ये डिफरेंस नहीं आ जाता? नहीं, डिफरेंस तो होता है, लेकिन आप देखिए जितनी भी माइनॉरिटीज़ अमेरिका में हैं, दे डू स्टिक टुगेदर. अब आप ये फंक्शन ही देखें, दिस इज़ ऑल पाकिस्तानी अमेरिकन्स, राइट? तो वी डू ट्राई टू स्टिक टुगेदर. ईद का आप कोई फंक्शन देख लें, कवरेज करें उसकी, इट्स ऑल पाकिस्तानीज. वी डू स्टिक टुगेदर, वी ट्राई टू कंजर्व एंड प्रिजर्व एज मच एज वी कैन. तो बच्चों ने घर में तो यही देखा हुआ है. लोग मेहनत करके काम तरक्की करते करते फिर अफसर भी बन जाते हैं, लेकिन जो कुछ काम है जिनको हमारे यहाँ बड़ा छोटा समझा जाता है और इसमें शर्मिंदगी होती है, क्या होनी चाहिए? कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी काम को छोटा समझना चाहिए या शर्मिंदगी होनी चाहिए. यहाँ पे सब लोग जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन हैं, वो भी छोटे काम घर में तो कर रहे होते हैं. तो मैं नहीं समझता कि किसी भी काम को छोटा समझना चाहिए, चाहे कोई ऊबर ड्राइवर है या चाहे कोई रेस्टोरेंट चला रहा है. दीज आर ऑल इक्वल काम. और आपको पता है हमारे रिलीजन में भी सारे कामों को फौकियत दी गई है. तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा जज्बा है कि आपको दूसरों को भी बिल्कुल इक्वल एज अ ह्यूमन बीइंग समझना चाहिए, और जो भी उनका प्रोफेशन है उसको इतनी इज्जत देनी चाहिए. अच्छा, आपने जॉब की बात की है, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो कवानीन हैं लेबर के हवाले से, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो काम वैसे भी, जब आपने यहाँ पे नया काम शुरू किया तो वो क्या काम था? पहला काम क्या था, और क्या उसमें आपको लगता था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने कहाँ जाना है? मैं एक्चुअली लकीली पाकिस्तान से ग्रेजुएट करके एज अ फिजिशियन यहाँ आया हूँ. तो रेजिडेंसी की है न्यूयॉर्क में, टफ प्रोग्राम में. तो आपको पहले कुछ साल आपको इस्टेब्लिश करने के लिए टफ टाइम से गुजरना पड़ता है. यू हैव टू गो थ्रू अ फ्यू इयर्स ऑफ चैलेंज. आपको रगड़ा लगाना पड़ता है किसी भी फील्ड में हो. फ्यू इयर्स टू इस्टेब्लिश, यू स्टार्ट स्लो, ग्रो स्लो, बट आपको एक चीज़ है कि यहाँ पे आपकी मेहनत का आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एंड में आपको रिवॉर्ड मिलेगा. बट फर्स्ट फ्यू इयर्स आर टफ एंड यू हैव टू वर्क एंड नॉट गिव अप. पाकिस्तान की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप मिस करते हैं, वो जो आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं है लेकिन वहाँ? फैमिली एंड फ्रेंड्स. पर माशाल्लाह DMV चैप्टर में हम लोग काफ़ी बिग ग्रुप है, तो यू कैन सी हाउ मेनी पीपल आर हियर इन द ईद पिकनिक. तो वी आर जस्ट फीलिंग लाइक वी आर विद द फैमिली. सर, सबसे पहले आपने यहाँ पर आके जो काम किया था वो क्या था? क्या उसके बतदरीज फिर आप आगे बढ़े और अब आप यू आर प्रोफेशनल डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर आते ही लैंड करते आपको क्या काम करना पड़ा? अपने आप को पहले इस्टेब्लिश करना, यहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफ़िल करना, तो अपनी जॉब सिक्योर करना, ट्रेनिंग करना, जॉब करना, फिर उसके बाद देन वी विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द कम्युनिटी. ये बताइए ना कि आप कितने अरसे से यहाँ पर हैं? I came in 2004 in America.
ओके, तो कैसे आए, कैसे माइग्रेशन कैसे हुई? बेसिकली आई एम अ साइकाइट्रिस्ट, सो केम फॉर रेजिडेंसी, अपनी ट्रेनिंग के लिए आई, एंड आई हैव बीन हियर सिंस देन. आमतौर पे जब माइग्रेशन होती है तो इन्हीं वजूहात की वजह से होती है. कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, और फिर आकर यहाँ पर जब सेटल होते हैं तो उसके एक स्ट्रगल होती है. वो उस स्ट्रगल के अंदर जो काम करने पड़ते हैं वो आपको क्या करने पड़े, कुछ बताएंगे? नहीं, देखिए, अब पाकिस्तान में आई वॉज इन माई पेरेंट्स हाउस, हर चीज़ वहाँ नौकर चाकर एवरीथिंग इज़ लाइक डन फॉर यू. सो यहाँ तो यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यू लर्न द सिस्टम, यू लर्न हाउ टू कुक, यू लर्न हाउ टू रन द हाउस एंड बैलेंस योर स्टडीज़. सो एग्ज़ाम्स भी देने हैं, यू हैव टू आपके आई हैड अ सन व्हेन आई स्टार्टेड रेजिडेंसी, ही वाज 1.5. उसकी चाइल्ड केयर कैसे करनी है, सो अ लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स आर इन्वॉल्व्ड. So it's not easy to leave your country and come and start. पाकिस्तान में तो हेल्प मिल जाती है, फैमिली की हो जाती है, रिश्तेदार. और वहाँ और भी वैसे भी हेल्प है. यहाँ तो एवरीथिंग मी एंड माई हस्बैंड डिड ऑन आवर ओन, तो इट वाज डिफिकल्ट. अच्छा, ये बताइए, आप एक मुद्दत से यहाँ पर मुकीम हैं, तो पाकिस्तान आप में कौन सी ऐसी बात है जो यहाँ पर आपको नहीं नज़र आती? यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को आप मिस करते हैं. मसलन जब त्यौहार होते हैं, ईद है, शब रात है, हम उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते. यहाँ पर बहुत दफ़ा ईद पे हम में से बाज़ लोग काम कर रहे होते हैं, तो हमारी ये जो त्यौहार हैं वहाँ से फ़र्क होते हैं और हम मिस करते हैं. और दूसरा जो वहाँ पे कैजुअल है कि आप किसी के घर भी चले जाएँ, यू कैन हैव समोसा, टी, कोई उसकी परमिशन नहीं है चाहिए. एक वो जो कैजुअल आपका गेट टुगेदर का एटमॉस्फेयर है पाकिस्तान में, वो यहाँ पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि सब लोग काम कर रहे होते हैं. आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है मिलने की. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया. उसकी रीज़न ये है कि जब फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पे बच्चे तो घरों से 18 के बाद चले जाते हैं, अपना अपना स्कूल कॉलेज भी करते हैं, लेकिन फिर घर वापस आने के लिए उनको माँ बाप से अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ती है कि इस दिन आएँ और इतनी देर के लिए आएँ. ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आई फील कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आपको अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें टाइम नहीं देंगे तो वो भी बड़े हो के आपको नहीं देंगे. तो ठीक है, आपका प्रोफेशन भी है, बट यू हैव टू कीप अ बैलेंस. तो जो फैमिलीज़ अपने बैलेंस रखती हैं, आई थिंक उनके बच्चे अटैच्ड भी रहते हैं, उनके साथ भी रहते हैं, आते जाते भी रहते हैं. और कुछ लोग, अगर आप बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल अडॉप्ट कर लें तो ज़ाहिर है कि बच्चे जो हैं वो अपने परस्यूट जो भी हैं उसके साथ चले जाते हैं, एंड दे मे नॉट बी एज अवेलेबल फॉर यू व्हेन यू नीड देम. पाकिस्तान मिस तो करते होंगे, तो वहाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसा क्या है जो यहाँ आपको नहीं मिलता? बचपन का टाइम, दैट्स वेरी गुड वन. वैसे बड़ा मार्केट्स, लोग, माहौल, एनवायरनमेंट, आम खाना, तो आई थिंक बचपन मेनली, चाइल्डहुड. तो जब आप विज़िट करते हैं वापस, तो वो एक कोई कंपैरिजन ज़हन में आता है, यहाँ का, वहाँ जाकर यहाँ वापस आने का मन कर रहा हो ज़्यादा? लाइफ थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाती है यहाँ आके. फ्रीडम डिफरेंट लेवल की होती है, उधर डिफरेंट है. उधर लगता है कि आप मेंटली थोड़े रिलैक्स होते हैं. यू फील लाइक कि आप जो भी चाहें आपको उधर एक लिबर्टी में आप करते हैं. इधर आपको लाइन में लगना पड़ता है तो फिर आपका जॉब में आप बिज़ी हो जाते हैं, तो उधर आप वहाँ का ट्रिप रिलैक्सिंग होता है.